Hello guys, I hope you are doing very well. My name is Ravi Singh. I'm a professional IELTS trainer having more than 15 years of experience and welcome to this punctuation playlist. आज की वीडियो में हम फोकस करने जा रहे हैं another punctuation mark dash. Okay? So अगर आप भी सीखना चाहते हैं dash को accurately कैसे यूज़ करना है अपनी writing में, essay writing में, so stay with me until the end of this video. You will definitely learn how to use dash accurately. And if you are new to this channel, you can subscribe to my YouTube channel and hit the notification button to receive much needed English boosting and IELTS related videos. So let's begin. Okay, सबसे पहले हम देखें कि डैशेस की कैटेगरीज क्या होती हैं. हमारे पास तीन तरह की डैशेस हैं, जैसे कि एम डैश, एन डैश और हाइफन. तो हम इन डैशेस को इनके साइज के बेसिस पर डिस्टिंग्विश करते हैं. ओके, एम डैश का साइज सबसे बड़ा होता है. ओके, सो एन डैश का साइज उससे थोड़ा सा छोटा होगा और हाइफन सबसे छोटा होगा. ओके, तो हाइफन को इस वीडियो में हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसके लिए मैं सेपरेटली वीडियो बनाने जा रहा हूँ. ओके, सो हमारे फोकस में है एम डैश और एन डैश. ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि एम डैश क्या है. ओके, read with me. You can use M dash in place of comma, parentheses or column to add information which is not essential for the overall sense of main sentence. Okay, they are more emphatic than columns but less formal. जब भी हम अपने main sentence में कुछ ऐसी information देने जा रहे हैं जो कि totally unimportant है main sentence में, और वो main sentence की sense को कोई effect नहीं कर रही, so हम उन्हें M dash की help से separate या connect कर सकते हैं. Okay, and here we have the note. Okay, so these M dashes थोड़ी सी ज़्यादा emphatic होती हैं, जो ज़्यादा emphasis करती हैं हमारी unessential, non-essential information में. Okay, but इनका use ज़्यादा formal माना नहीं जाता. Okay, इसीलिए इसको limits में ज़्यादा use करते हैं. Okay, so we have a note. Try to use dashes in limit. Since they can make your sentence a bit confused sometimes if not accurately used. Okay, there should be no space before and after the M dash. Okay, जब भी आप M dash use करें उससे पहले और बाद में कोई space put ना करें. Okay, so let's take few examples with M dash. So when the item was delivered around 15 days after the placement of order, she refused to accept it. So हमारे पास main sentence है, when the item was delivered, she refused to accept it. Okay, so but इस sentence में हमने M dash की help से एक additional information दी है जो कि non essential है हमारे main sentence के लिए. Okay, around when the item was delivered around 15 days after the placement of order, she refused to accept it. Okay, अगर हम इस information को consider नहीं करेंगे हमारे main sentence में कोई भी effect नहीं होगा. Okay, so हमारे पास second example है, our politicians who frequently fool us win the elections in an unbelievable manner. So हमारे पास एक additional information दी है M dash की help से, who frequently fool us. Okay, so J information हमारे main sentence के लिए non-essential है, unimportant है. अगर हम इसको erase करते हैं और इसको consider नहीं करते, हमारे पास sentence बचेगा our politicians win the elections in an unbelievable manner. Okay, so इसकी sense में कोई भी effect नहीं होगा. Okay, so जब भी आप कोई भी sentence दे रहे हैं जो हमारे main sentence को sense को effect नहीं करेगा but वो एक non-essential information है, so हम M dash की help से उसे connect कर सकते हैं. Okay, so हमारे पास third example है, upon discussing the primary choice of our outing, I got a unanimous response, Shimla. Okay, so इस example में हमने हमारा main sentence है कि upon discussing the primary choice of our outing, I got a unanimous response. वो unanimous response है Shimla, जो कि additional information हमने दी है. Okay, so now we have examples without M dash. Okay, so हमारे पास तीन सेंटेंस है, सेम तीन सेंटेंसेस दोबारा लिखे हैं. So but इन तीन सेंटेंस में हमने
एम डैश की जगह पर हमने अभी यूज़ किया है कोमा, पेरेंथेसिस और कॉलन. ओके, यू कैन ऑल्सो डू द सेम. ओके, आप अगर एम डैश को यूज़ नहीं करना चाहते, आप उसकी जगह पर कोमा, पेरेंथेसिस और कॉलन को यूज़ कर सकते हैं जब भी आप नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन अपने मेन क्लॉज में देना चाहते हैं और उस नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे मेन सेंटेंस को इफेक्ट नहीं करती. ओके, सो व्हेन द आइटम वाज डिलीवर्ड अराउंड 15 days आफ्टर द प्लेसमेंट ऑर्डर, शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट. सो हमने जहाँ हमारी जो नॉन सेंस इंफॉर्मेशन क्लॉज है ये वाला, इसको कोमा की हेल्प से पुट किया है. ओके, जहाँ सो पहले हमें यूज़ किया था एम डैश. ओके, सो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है आवर पॉलिटिशियन. नाउ हमने क्या किया है, जो पहले हमने एम डैश की हेल्प से जो कनेक्ट किया था हु फ्रीक्वेंटली फूल्स, नाउ हमने यूज़ किया है पेरेंथेसिस को. ओके, ब्रैकेट्स को. आवर पॉलिटिशियंस हु फ्रीक्वेंटली फूल अस विन द इलेक्शन इन एन अनबिलीवेबल मैनर. ओके, हमारे मेन सेंटेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए. आवर पॉलिटिशियंस विन द इलेक्शंस इन एन अनबिलीवेबल मैनर, बट उसके बीच हमने नॉन एसेंशियल अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है जो हम ब्रैकेट एम डैश पेरेंट कॉलन की हेल्प से या कॉमा की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं. ओके, सो हमारे पास थर्ड एग्जांपल है अपॉन डिस्कसिंग द प्राइमरी चॉइस फॉर आउटिंग आई गॉट अ यूनानिमस रिस्पांस शिमला. सो इस जहाँ हमने कॉलन को यूज़ किया है, तो इसके बाद लिस्ट ऑफ आइटम्स और लिस्ट को आप ऐड कर सकते हैं. ओके, सो ये तीनों ही मेथड एक्यूरेट है. ओके, या तो आप एम डैश को यूज़ कर सकते हैं अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करने के लिए. ओके, या आप कोमा, पेरेंथेसिस और कॉलन को भी यूज़ कर सकते हैं सेम मेथड के लिए. ओके, सो नाउ वी हैव एन डैश. ओके, सो एन डैश का यूज़ काफ़ी कॉमन होता है. इसको हम यूज़ करते हैं एन डैश इज यूज टू represent range of number, dates or time. Okay, in these contexts n dash can be interpreted as meaning either to or through. जब भी आप किसी अभी नंबर और डेट्स और टाइम की रेंज को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, इन सिचुएशन में हम एन डैश को यूज़ कर सकते हैं. ओके, जैसे कि बट इन सिचुएशन में एन डैश का मीनिंग होगा टू और थ्रू. Okay, let's take for example. Again we have a note. There should be no space before and after the n dash. जैसे कि हमने m dash में देखा था, उसके पहले और बाद में कोई भी स्पेस नहीं आएगी. उसी तरह n dash के पहले और बाद में कोई भी स्पेस नहीं आएगी. Okay, so example with n dash. From 2000 to 2010 I was studying in Australia. Okay, now look at that. 2000 to 2010 हमने रेंज दी है यूएस की. ओके, इसमें हमने एन डैश यूज़ किया है. सो इसका मीनिंग हो रहा है 2000 to 2010. सो हमारे पास है सेल्स ऑफ कार सॉ अ बिग जंप फ्रॉम 50,000 to 80,000. ओके, अगेन हमने जो है एन डैश को यूज़ किया है. ओके, सो जिसका मीनिंग हो रहा है 2. ओके, now we have the third example. You can book an appointment with me every day 2 p.m. to 4 p.m. Again हमने जो है एन डैश को यूज़ किया है. सो टाइम की रेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके, सो जब भी आप किसी नंबर, डेट्स और टाइम की रेंज को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, सो टू की यहाँ से थ्रू की यहाँ से आप एन डैश को यूज़ कर सकते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए रेंज को. ओके, so I hope you understand how to use dashes accurately. Try to use these punctuation marks in the same manner as you have learned in this video. And if you like this video, you can subscribe to my YouTube channel and hit the notification button to receive much needed English boosting and IELTS related videos. Thank you.